Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331-4444 or 2371-7106 and 2371-7117. I'm Gaurang Dhawan Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले STD कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। नमस्कार धीरेन्द्र जी। पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं गौरा धवन लाल। A quick look at the headlines. Job opportunities are on the rise across the country, reflected by the quarterly employment survey and EPFO payroll data. Foreign investors pull out nearly 15,000 crore rupees from the Indian capital market so far in February, and global crude oil prices surge for the 8th straight week. तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और EPFO के वेतन संबंधी आंकड़ों से पता लगता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से फरवरी में अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए निकाल लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य में लगातार 8वें सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई। Citing the recent survey reports of the quarterly employment survey and EPFO payroll data, Union Labour and Employment Minister Bhupender Yadav has said that employment opportunities are increasing in the country. He said the government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, is committed to the welfare of the workers and labourers in both the organised and unorganised sectors. He was speaking at the 187th meeting of the Employees State Insurance Corporation, ESIC, at Gurugram in Haryana yesterday. Mr. Yadav said that the health checkup of labourers will be conducted by ESIC hospitals and factories, and MSME clusters will be considered as a unit, and the ESIC will coordinate with them for preventive health checkups. The health checkups will be conducted in a total of 15 cities as a part of the ongoing pilot project. The Union Minister further informed that pending projects of the ESIC as well as construction work of ESIC hospitals will be expedited. He also called upon doctors to join ESIC hospitals serving the poor and assured the remuneration of doctors and staff would be revised. और इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे श्रोता किरण जुड़ चुके हैं। किरण नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सर, टाटा एसेट एलोकेशन अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है सर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? वर्थ इन्वेस्टिंग एज डूइंग SIP इन दैट? Asset allocation funds, I'll explain you. I don't know much about it relative. And I don't know in detail about this fund to give you an opinion. But these asset allocation funds basically attempt to benefit from the swings in the market. There are times when market is expensive, and that is the time when one should be out of it. But perfectly timing it has proved to be extremely difficult for any fund in the past. So that is why most of the funds, there are quite a few funds in this category, and none of them has been able to build a credible history. Or because it amounts to taking a call on the market at the opportune time, and
to be consistently right with this, I haven't come across one. So I think, decide primarily based on, if you are going to invest for 5 years and more, then, choose the equity fund or choose the aggressive hybrid fund. Those are frozen allocations. You can choose the vehicle you are more comfortable with, because different vehicles, the different allocations will have, greater stability. But asset allocation funds, many of them, and they have not been able to build a case for themselves. और बलराम से हमारी श्रोता रिंकी तिवारी लाइन पे हैं। रिंकी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। नमस्ते सर, पहले तो आपको रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू रिंकी। जी बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अगर मान ली मेरे पास मैंने फंड नहीं जमा किया, मेरे पास कोई भी ऐसे पैसे नहीं है जो मैंने खुद से जमा किया, लेकिन अगर मान ली मैं कर्जा लेकर निवेश करना चाहते तो उस वक्त पे या उस टाइम पे हमें कितना कर्जा मतलब सरकार खुद अपने तरफ से निर्वहन करेगी। धन्यवाद सर। मुझे इनका प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार जरा मुझे बताएं दोबारा। देवेंद्र जी, आई थिंक रिंकी इज उनका फोन कनेक्शन भी कम हो गया, मे बी शी कॉल बैक अगेन। वी राइट नाउ हैव फ्रॉम गाजियाबाद आशु इज ऑन द लाइन। आशु वेलकम, अपना सवाल पूछिए प्लीज। Very good evening, and thank you to all the Market Mantra team for putting up a great show. Especially I wait for Sundays to understand mutual fund nitty-gritties and get a clear guidance. So I have actually two small questions, and I am confused, and I really need the expert advice. I am interested in booking up a flat for myself. Now the point is, which pocket should I liquidate? That is, should I come out of mutual funds, or should I come out of my provident fund, or should I take a loan against my public provident fund? So for the initial booking of a flat. So I'm a little confused here, and I don't know which way I should go. So that's one thing. And the second thing is, in the current situation, would it be sensible enough to keep investing in Aditya Birla MNC fund and Motilal Oswal Nasdaq fund, or should I stop right now? I've been investing in these two funds approximately 5,000 per month for last 3 to 4 years. So I just need an opinion, like, should I stop right now and proceed in other funds, as I don't think so they will be giving up a better returns over a long course of time. Thank you very much. Your first question, there isn't a straight answer that what you should liquidate or should, because you have multiple choice. One is that you can borrow money. Then comes, you can liquidate your investments, or you can take money out from your provident fund. Now, let's just look at it purely as, from your overall financial framework, that, and this is for the down payment of the initial payment for a flat. So I would say that, this is the contribution which you should make on your own. Maybe 20-25% of any asset that you are buying, you should have that much contribute that much principal of your own, because that is something which will give you you will be able to borrow in future, and this is something which will give you a ownership also in the terms of involvement. Then comes should you whenever you need to borrow, which one of these? I think I have a very clear framework on that home loan borrowings incur very low, perhaps the lowest interest rates. Then they are, and if the interest repayment, the principal and interest, the loan repayment of the EMI very well fits into your expense framework, then go for it, because this is the only borrowing which I suggest anybody should take. Nobody should borrow money for any other thing but for for buying a home, and but only if it fits into your framework. Because many a times I come across people who have borrowed so much that all their other expenses they have to curtail on some of the essentials which may be undesirable. And this is where having your initial contribution of your own without borrowing will be helpful.
And with that in mind, I think, think of provident fund accumulation as your money. Think of your mutual fund investments as your money. And with that in mind, I think, it's always good to be taking, putting money out of relatively lower yielding investments, whatever be your options. Now comes to your two funds, Nasdaq 100 and Birla MNC. Both are, if you have been investing for 3-4 years, MNC fund might be looking disappointing, but it is an outstanding fund with a very, credible portfolio. It invests only in multinational companies. It does not skyrocket. It does not go ballistic with its performance. And Nasdaq 100 has gone ballistic. But I still feel that, there is no reason to be very pessimistic about the performance of both the funds. I think the MNC fund is coming from that thing, coming from the lull, and the Nasdaq 100 is, witnessing some kind of upheaval. But the top 100 top 100 stocks listed on Nasdaq 100, of which 66% into technology companies, of the heavyweights. I still like that fund simply because the kind of technology companies that they have exposure to, they are big and they are still fast growing. They are, and they are huge margin business. They are not of the usual technology business, technology services business of India. They are growing rapidly and they have huge, substantial margin, and they are a virtual monopoly in their area of operation. So I think there is no reason. I'm not very pessimistic about that fund as well. और दिल्ली से हमारे श्रोता अभिमन्यु लाइन पे हैं। अभिमन्यु नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मार्केट मंत्र टीम को सर हमारी तरफ से नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ सर कि जो म्यूचुअल फंड कोई स्कीम है कि फंड है, उसके अंतर्गत सर जो डबल पैसा होता है, जैसे मान लीजिए सर 10,000 या 30,000 हम अगर फिक्स करते हैं तो क्या डबल होता है पैसा कि उससे भी कम ब्याज पे, मतलब कम पैसा मिलता है? इसके बारे में सर मुझे थोड़ा हिंदी में जानकारी दें। जी सर, थैंक यू। जी हाँ, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, एक ऐसा जरिया है जिसमें कि आप पैसा लगाते हैं, और बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि शेयर में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे फंड हैं जो कि बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, कुछ फंड ऐसे होते हैं जो कि बॉन्ड और शेयर दोनों में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें चुनना पड़ेगा कि कौन से शेयर में लगाएं, उन्हें निर्धारित करना पड़ेगा कि कब खरीदे, कब बेचे और कब न खरीदे और कब नहीं बेचे, तो और कब नहीं लगाना चाहिए, कब इक्विटी में लगाना चाहिए, कब डेट में लगाना चाहिए। इन चीजों को करना एक प्रोफेशनल को आप पैसा देते हैं, और म्यूचुअल फंड आप जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह दे करके उसको उसको एक बाजार में लगाता है। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। यहाँ पे लगाया हुआ पैसा कुछ दिनों में हो सकता है नीचे हो जाए या ऊपर नीचे, इसका रोज बाजार खुलने पे इसका परफॉर्मेंस आधारित है। लेकिन देखा गया है कि जो बहुत उतार चढ़ाव वाला भी जो इक्विटी फंड है, वो भी 4-5 साल के निवेश पे उसमें नुकसान नहीं होता है, बल्कि फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। पिछले 1 साल में जो मिड कैप फंड्स हैं उनमें बढ़ोतरी 43% की हुई है, लेकिन आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते यहाँ पे किसी भी तरह का। और 43% की वृद्धि हुई है, लेकिन उन्हीं फंड्स में गिरावट 3 महीने में 4% की हुई है। तो 43% बढ़ने के बाद 3% की गिरावट हो जाए तो हमें ज्यादा अफसोस नहीं होता है, लेकिन गिरावट से हम आसानी से रिकंसाइल नहीं करते हैं। मेरी सलाह होगी कि आप छोटा सा निवेश कीजिए। एक छोटा सा निवेश एक ऐसे फंड में कीजिए जो कि इक्विटी में कम पैसा लगाता है। इस तरह के फंड होते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड, इसमें 10-20% पैसा इक्विटी में, या हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड, इनमें 10-15% पैसा इक्विटी में लगता है, बाकी डेट में लगता है। रेकरिंग डिपॉजिट की तरह कीजिए। एक साथ 30,000 रुपए या 50,000 रुपए मत लगाइए। 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए का 500 रुपए अपना हर महीने लगाइए, एक साल लगाइए, और आपको अंदाज हो जाएगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है। और ये मेरे बताने से या किसी के बताने से
इसको आप गहराई से नहीं समझ पाएंगे। लगाने के बाद जो पैसा का जो एक्सपीरियंस है वो आपको सही रियलाइजेशन होगा कि ये उतार चढ़ाव क्या है, इससे कैसे रिकंसाइल करना चाहिए और इसका इवेंचुअली इसका फायदा या नुकसान क्या है। और नोएडा से हमारे श्रोता RM माथुर जी लाइन पे हैं। माथुर साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे इसी अभी लगाना है 1.5 लाख ELSS में, तो मेरे ऑप्शन तो ये है एक्सिस का है और बिरला का 86 टैक्स है, क्वांट का टैक्स है और PPF है। अब ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है इसमें सबके सेक्टर अलग अलग है, क्या तीनों में लगाऊं और PPF में लगाऊं, क्या करूं, जरा मुझे ठीक से राय दे दीजिए। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। ये फंड गिना रहा है ये अच्छे हैं, लेकिन ऐसा फंड जो कि भविष्य में भी अच्छा करेगा या उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है उसके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से, उसमें मुझे इन्वेस्को का या एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड उसके पोर्टफोलियो की वजह से मुझे काफी बढ़िया लगता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं जिसमें कि आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, 1.5 लाख रुपया लगाइए, 3-4 साल 5 साल तक अगर ये पैसा लगा रहेगा तो आपको निराशा नहीं होगी। I think what is coming through from your advice, sir, is that start small and the more confident you become, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, बट छोटे से शुरुआत करिए और अपना खुद का कॉन्फिडेंस गेन करिए। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से फरवरी में अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से 10,080 करोड़ रुपए और डेट बाजार से 4,830 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह भारतीय बाजारों से कुल 14,911 करोड़ रुपए की निकासी हुई। इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी में 28,000 करोड़ रुपए, दिसंबर में 30,000 करोड़ रुपए, नवंबर में 2,500 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 12,700 करोड़ रुपए निकाले थे। We are now joined from Mumbai with Shrikant. Shrikant ji, welcome. Please ask your question. Yeah. See, I have done one mutual fund redemption on 31st of January. Till today, I have not got the redemption amount. So where should I do? This is forward to track. There is a facility, there is a service called MS Central. Just go to this website, mscentral.com. And this is actually managed by the two registrars who happen to be the registrar of all the mutual funds which is, which operates in India. And this is where you can get your, and to register here, all you require is your PAN number. Your PAN number, and then you will provide your information which you have given in while making that investment. And you'll be able to track your, what is the state. And if at all, if it was 31st of January and you haven't got that, I understand that there will be some issue with this. This is one way of doing it yourself. The other is, write to the fund company about your redemption, because every redemption happens. I don't know whether you did a digital, online redemption request or you did a physical redemption request. Depending on that, they will guide you. The one good thing about mutual fund redemption is that the money comes only into your bank account. Check your bank account as well. Virendra ji, we now move to the pink city of Jaipur. We have Jitendra with us. Welcome, sir. Please ask your question. हेलो। हाँ जी जितेंद्र जी, सवाल पूछिएगा, स्वागत है आपका। अच्छा, ये बोलो कि सर जैसे कोई स्कीम बंद होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, मतलब उसको क्या, हमारा जो पैसा रहेगा वो कैसे किस फंड में ट्रांसफर होगा, उसका नियम क्या है सर? आज जो हम फंड में पैसा लगाते हैं वो ओपन एंड फंड है, वो बंद कभी नहीं होते। उम्मीद ये रहती है कि वो हमेशा चलते रहेंगे। और कुछ फंड होते हैं क्लोज्ड एंड फंड जो कि एक खास अवधि के लिए आते हैं। क्लोज्ड एंड फंड की शुरुआत होती है और उस समय ही आपको बताया जाता है कि ये 5 साल का फंड है, ये 7 साल का फंड है या 3 साल का फंड है। जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान कि आज आप लगाते हैं और 3 साल के बाद या 3.5 साल के बाद ये बंद हो जाएगा और उस समय सारा पैसा
और उस समय ये किया जाता है कि सारे निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाता है, जो बढ़ा हुआ पैसा या गिरा हुआ जो भी उस समय आपके पैसे की स्थिति है। और पिछले अब तो म्यूचुअल फंड के नियम में का ये भाग है कि आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर देना पड़ता है। पहले 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब क्लोज्ड एंड फंड आते थे और अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना अनिवार्य नहीं था, तब ये समस्या होती थी कि लोगों को फिजिकली एक रिडेम्पशन का चेक भेजा गया और तब तक अगर उनका पता बदल गया है तो उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है और वो पैसा फंड कंपनी में पड़ा रहता था। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि क्लोज्ड एंड फंड में उन्होंने पैसा लगाया था, 5-10 साल 15 साल के बाद ये ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो पैसा पड़ा हुआ है। जब बंद हो जाती है उसके बाद आपको कोई मुनाफा नहीं होता। इसलिए वैसा अगर आपके पास आपका कोई अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट है तो उसको जरूर निकाल लेना चाहिए। ओपन एंड फंड में पड़ा हुआ पैसा अगर आप भूल जाते हैं तो वो बढ़ता रहता है जब आम लोगों के पैसे के साथ, और आपको उसका प्रदर्शन वैसा ही रहता है जो उस फंड की स्थिति हो। और दिल्ली से हमारे श्रोता दिवाकर लाइन पे हैं। दिवाकर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार धीरेन्द्र जी, मेरा प्रश्न आपसे है। मैं जानना चाहता था कि एक बीते कल में एक फंड था HDFC 100 टॉप 100, तो उसमें मेरे माइनर सन का कुछ पैसा इन्वेस्टेड है। तो अभी तो मैंने देखा था रेटिंग उसकी 1 पे पहुंची हुई है, तो कोई ऐसा फंड सजेस्ट कीजिए जिसमें मैं पैसा वो री-इन्वेस्ट कर सकूं और फर्दर मुझे 2-4 लाख रुपए और भी लगाना है, जो कि मुझे अभी 5-7 साल तक नहीं चाहिए। धन्यवाद। कोई भी पैसा जो आपको 5-7 साल तक नहीं चाहिए वो किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में मुझे अगर कुछ गिनवाना हो तो आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप या एक्सिस का फ्लेक्सी कैप या कोटक का फ्लेक्सी कैप या मेरा एसेट का फोकस्ड फंड, SBI का फोकस्ड फंड, ये मैं आपको 5 फंड गिना रहा हूँ। ये इस कैटेगरी में बहुत सारे अच्छे फंड हैं और इस तरह का फंड इसमें ही अधिकतर निवेशकों को अपना शुरुआती निवेश, जिसको कि आप बहुत क्लोजली नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में लगाते हैं तो आप कह रहे हैं कि केवल बड़ी कंपनियों में पैसा लगेगा, स्मॉल कैप में लगाते हैं तो आप कह रहे हैं कि छोटी कैप, और ये बदलता रहता है। ये फंड ऐसे हैं जो कि बाजार में आजादी से कहीं पे भी लगा सकते हैं। और जो फंड मैंने गिनाए इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे विकल्प हैं, पर ये जो मैंने गिनाए इनका काफी कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न पिछले 4-5 साल में रहा है। Right. Thank you, Dhirendra ji. We'll take a quick look at the oil prices. Global crude oil prices touched their highest since late 2014 and posted their 8th consecutive week of gains on growing concerns about global supplies as demand recovers from the coronavirus pandemic. Brent crude futures settled at $94.44 a barrel on Friday, while U.S. crude ended at $93.10 a barrel. Russia has massed enough troops near Ukraine to launch a major invasion, Washington said, as it urged all U.S. citizens to leave the country within 48 hours. Adding to the rising fuel pressure, the International Energy Agency also raised to its 2022 demand forecast and expects global demand to expand by 3.2 million barrels per day this year, reaching an all-time record of 100.6 million barrels per day. The Energy Watchdog's report follows the Organization of Petroleum Exporting Countries warning earlier this week that world oil demand might rise even more steeply this year on a strong post-pandemic economic recovery. और दिल्ली से हमारे श्रोता महेश लाइन पे हैं। महेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा ना पराग पारिक में सीट्स है, तो which got actually I renewed it actually within this month from because the RBI guidelines doesn't permit more than 5,000 as a transaction. So I have done actually from within this month again I renewed my with the revised SIP amount. But now the Parag Parik, they have stopped the new SIPs and all. So what is going to happen with my SIP? Because I got that they have accepted my SIP as well. But now what is going to happen? And if at all they don't accept because of the guidelines of SEBI whatever, उसके मतलब विकल्प क्या है? नहीं है कि आप पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें कि 30% पैसा विदेशी बाजार में लगा हुआ है, इस फंड ने लमसम पैसा लेना बंद कर दिया क्योंकि आरबीआई का जो नियम है, जिसमें कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विदेशी बाजार में $7 बिलियन तक का एक सीलिंग है,
उससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। और वो पूरे इंडस्ट्री का, चूंकि भारत में बहुत सारे ऐसे फंड ऑपरेट कर रहे हैं जो विदेशी बाजार में लगाते हैं और वो सीलिंग एट कर चुका है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आरबीआई से ये परमिशन आना एक प्रोसीजरल चीज है। 10 साल पहले ये सीमा निर्धारित की गई थी और उस समय से अभी की तुलना में अभी भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है। 7-8 बिलियन डॉलर कोई भारत के लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं होगी। और ये निवेश है, ये पैसा बाजार बाहर नहीं जा रहा है हमेशा के लिए, ये पैसा आता जाता रहता है। तो और जहां तक एसआईपी की बात है, इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फंड ने बोला भी है कि अभी जो स्थिति है उसमें एसआईपी जारी रहेंगे। आपका जो एसआईपी है, आपके खाते में पैसा है, हर महीने वो पैसा लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये 2-4 सप्ताह में ये शायद रिस्टोर हो जाए और आरबीआई के परमिशन आने का। और ये दूसरे तरीके से भी ये रिस्टोर हो सकता है। अगर फंड ये निर्धारित करती है कि विदेशी कंपनियों में किसको कम पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, तो भी ये फंड खुल सकता है पूरी तरह से और लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर देंगे। जी। और मुंबई से हमारे श्रोता प्रमोद लाइन पे हैं। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा ये कहना है कि आपने जैसे बोला बाजार में पैसा आता जाता रहता है, तो लोगों को एक नया जरिया मिला है क्रिप्टो करेंसी का, तो उसके लिए तो पैसा नहीं निकाल रहे ना लोग मार्केट में, या दूसरा कुछ ये हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो या बाकी के करेंसी है उसका बहुत जोर शोर से चल रहा है। और इसका जो करेंसी है उसका कुछ म्यूचुअल फंड से कुछ रिलेशन में कोई आने वाला है क्या? मतलब ऐसे कोई म्यूचुअल फंड जो क्रिप्टो में या करेंसी में बाकी के करेंसी में कुछ इमर्ज होंगे, ऐसे कुछ है क्या? जी हाँ, क्रिप्टो का बड़ा बोलबाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। और जिस वजह से इसमें स्पेकुलेट करना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और बहुत सारे निवेशक इसमें, यंग निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं। और क्रिप्टो का कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है। इसका आधार यही है कि बहुत सारे लोग जब लगाएंगे तो इसका दाम बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जब अचानक बेचेंगे तो गिरेगा, और गिरता और बढ़ता भी ये बहुत रफ्तार से है। किसी भी म्यूचुअल फंड के आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। जो हमारे यूनियन बजट में जो प्रावधान हुआ है कि इससे मिलने वाला मुनाफा, उस पर 30% टैक्स लगेगा, और आपको जो मुनाफा होगा, चाहे भविष्य में आपको कभी नुकसान हुआ हो, आप एक दूसरे को आपका जो लॉस है और गेन्स है वो एक दूसरे को आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। दूसरा, क्रिप्टो को खरीदने के लिए 1% शुरुआत में ही टीडीएस कटेगा। तो अगर लगाते ही आपका पैसा 1% कम हो जाता है और मुनाफे का 30% आपका पक्के तौर पे आपको सरकार को टैक्स के तौर पे देना है, और अगर आपका नुकसान हो तो वो नुकसान आपका है, फायदे का 30% आपको टैक्स देना है। 1% शुरुआत में कटने के बाद आप 100 रुपया लगाते हैं, 99 रुपया हो जाता है, चाहे जो भी बढ़े 30% मुनाफा दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में किसी म्यूचुअल फंड का चलाना असंभव है। और चलते हैं एक और कृषि उत्पादों के बारे में खबर जान लेते हैं। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। APEDA ने कृषि उत्पादों के निर्यात को वर्ष 2020-21 में 20 अरब 67 करोड़ डॉलर तक पहुंचने में मदद देने के लिए सरकार की सराहना की। वर्ष 1986 में APEDA की स्थापना के समय कृषि उत्पादों का निर्यात 60 करोड़ डॉलर का था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। And now, before we close, a reminder of the headlines. Job opportunities are on the rise across the country, reflected by the quarterly employment survey and EPFO payroll data. Foreign investors pull out nearly 15,000 crore rupees from the Indian capital market so far in February, and global crude oil prices surge for the 8th straight week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.